Good morning, students. Today we will start a new topic of the BSc first year class. Anyways, the third paper, cell biology, in which in the cell biology the topic is a plasma membrane. In the previous lecture, we are just mentioned that about to the what is the cell, type of the cell, or the cell theory, and related to the processes which are involved. So that today's will start now to the plasma membrane. In the previous lecture, just mentioned that the entity of the cell which are made by there are the three distinct parts, there are the three important regions, there are the three peculiar organization, constitution, and made up of to the plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. So that we will go now to the topic the integrated part of the cell, which are formation of the boundary, limited to the boundary, or which make to the identity of the cell, which protect them. Because the limitations of the boundary, the identity of the boundary, which are made by the particular limiting membrane, bounding membrane, in all surrounds of the cytoplasm, in all around, so that this is the plasma membrane. This is the outer structure. So these are have to the chemical composition and all the features of the cells which are made by the particular chemical organization, chemical features. So that as the same, the plasma membrane is also made up of the chemical features, chemical organization, that is the carbohydrate, lipid, and the proteins. So that after the what is the function of the plasma membrane, which this is a very essential for that during to the diffusion process, which allow, which protect, which form to the identity of the cell. So many kinds of the functions as well of the plasma membrane. So we go now to the today's topic is the plasma membrane. आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर का जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी, उसके अंतर्गत हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जैसा मैंने बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट जो है मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल की आइडेंटिफाई करती है, सेल की आइडेंटिटी को शो करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, या यूं कह सकते हैं सेल एक, अगर हम सेल कहें तो सेल के एक लिमिटेशन, सेल कैसा होगा, सेल किस प्रकार का होगा, सेल किसको बोलेंगे, तो वो उसको फिक्स करती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें एक डिफिनीशन भी वहाँ पे उसको ऐड करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अभी ऐड करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग साइंटिस्ट के डिस्कवरी के पॉइंट के हिसाब से वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दें उसके डिफिनीशन को यहाँ पर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी थिन, अल्ट्रा थिन कह लीजिए, अल्ट्रा थिन इलास्टिक, डायनेमिक, living
and selective transport barrier, selective transport barrier। यहां पे मैंने ये डिफिनीशन इसका लिखा, अभी हम समझाते हैं डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मैंने जैसा पहले बोला इन द earlier to mention that to the plasma membrane is also known as to the cell membrane, plasma lemma and the cell envelope. Why are called to the plasma membrane is the cell membrane, cell envelope and the plasma lemma. Cell membrane because जो सेल है, सेल के आइडेंटिटी को, साइटोप्लाज्म के रिप्रेजेंटेशन को वो लिमिट करता है, उसको एक बाउंड्री के अंतर्गत रखता है। तो जब सेल के आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सेल को कवर करती है, सेल को रिप्रेजेंट करती है, इसके कारण इसका नाम सेल मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा जो नाम है सेल इनवलप। सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट्स होता है, मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि वो क्या है, एक इनवलप की तरह, एक पैकेट की तरह, एक पूरे सेल का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो वो एक एज लाइक टू द पॉकेट विच आर हैव टू द प्लाज्मा एंड दे आर द न्यूक्लियस एंड ऑल द थिंग्स अबाउट टू द जस्ट referred to the prokaryote and the eukaryote cell as you mentioned that in the previous lectures. So that we will go now to the what is the why are called to the cell envelope. इस सेल के ऊपर आउटर मोस्ट पूरे सेल को ये कवर करता है, एक इनवलप की तरह काम करता है, इसलिए इसको सेल इनवलप भी बोलते हैं। फिर इसको प्लाज्मा लेमा बोला जाता है। प्लाज्मा लेमा हर जगह नहीं बोला जाता, कंडीशन है उसकी। तो इसको plasma is the fluid and the lemma is the layer or the membranous structure। तो प्लाज्मा को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर है, जो मेम्ब्रेन्स है, उसको हम प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से, उसके कंडीशन के हिसाब से, उसके फीचर के हिसाब से जाना जाता है। अब इसकी डिस्कवरी ये क्या है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कही जाती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, एज यू मेंशन दैट टू द दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री बिकॉज दीज आर द प्रेजेंट इन टू द दैट इज द लिमिटेड टू द सेल सराउंडिंग द सेल, दैट इज it is the outermost boundary of the cell. The plasma membrane encloses every type of the cell, both prokaryote, eukaryote and the mesokaryote. Plasma membrane is the encloses all type of the cell and the who's the cell, prokaryote and eukaryote. Particularly यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, try to understand about to the what is the situation and why are is representing to the enclosedness, enclose कर रहा है पूरे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि प्रोकैरियोट की क्या समझना होती है। तो कोई किसी भी प्रकार का सेल होगा उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे उपस्थित होगा। और सेल की, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सेल की आइडेंटिटी को बनाने वाला ये खुद है, उसकी बाउंड्री को शो करने वाला, उसको लिमिट करने वाला ये होता है। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं वो चाहे either a prokaryote or the eukaryote, that is the both type of the cell which encloses, that is to the plasma membrane. So that to the this is the outermost boundary and encloses to the both type of the cell is the prokaryote and the eukaryote, and it controls the entry of the nutrient and exit of the waste product and generates differences in the ion concentration between the interior and the exterior of the cell. In the first of all, we are just take to the first sentence, it control the entry of the nutrient and the exit of the waste product. पहले हम इसको समझते हैं क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करें। एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एग्जिट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या, मैं यहाँ पे आपको पहले बता देना चाहता हूँ। आप जानते हैं
लोअर क्लासेस से आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं और इतना तो आपको पता होगा कि ये सेलेक्टिव इन नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या होता है वो परमेबिलिटी को शो करता है, सेलेक्टिव इन नेचर होता है। तो इसके हिसाब से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, गैसेस होते हैं, उनको क्या करता है, क्रॉस अलाउ करता है। जैसे आप सेल के अंदर किन मटेरियल की जरूरत है वो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलाउ के, बिना उसको क्रॉस किए नहीं जा सकता, या फिर जो सेल के अंदर जो मटेरियल्स वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में है, वो बाहर नहीं निकल सकता, सेल के बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको जो न्यूट्रिएंट मटेरियल आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द food material, that is the degrade, and the simplest one which are goes through the blood in each of the cell, that at that time when the reaches to the near of the cell, which are allowed by the plasma membrane, and the plasma membrane first of all to the selective in nature, so that whose kinds of the material, whose kind of the ions or the molecules or the nutrient material go inside, just want to go inside, so that first to the recognize what is the process of the diffusion which takes place to the passive diffusion, active diffusion, osmosis, simple diffusion, or accelerated diffusion. All the kinds of the diffusion which are had to the according to the molecules, according to the ions, according to the nutrient materials, so that is the allow inside the cell, that is the across the inside the cell, but the first of all to the selective in nature, so that is the allow। तो न्यूट्रिएंट मटेरियल जो कि सेल में जाना है आफ्टर द डाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद, और जो सेल के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, एसेंशियल है, वहां पे वो एकरास करेगा, और एकरास की प्रक्रिया हम आगे भी समझाएंगे। तो वो एकरास जो प्रक्रिया होती है वो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं हो सकती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या करता है, अलाउ करता है, और अलाउ करेगा तभी वो अंदर प्रवेश कर सकता है। उसी सेम प्रोसेस में फिर जबकि वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, और बाहर तभी जाएंगे जबकि फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा। तो इस तरह प्लाज्मा में अलाउ करेगा तो वेस्ट मटेरियल, तो किस प्रकार का वेस्ट मटेरियल है, कौन सा वहां पे एनर्जी खर्च होनी है, नहीं होनी है, ऑस्मोसिस होना है, या फिर एक्सेलरेटेड डिफ्यूजन होना है, सिंपल डिफ्यूजन होना है, किस प्रकार के विच टाइप ऑफ द डिफ्यूजन विच आर टेक्स प्लेस फॉर द across the nutrient material or the goes to the outside for the waste material, so that this is the very important which have to the ability to the selective in nature, and which recognize which type of the cell, which kinds of the materials which allow, and that so that this line of the plasma membrane, it controls the entry of the nutrient material and the exit of the waste product. That is the condition. This is the cell, and that's the material which goes inside and outside. This is the nutrient material, this is the waste product. Both of the conditions, the plasma membrane allow to the nutrient and the waste material, so that this is the membrane, and across the membrane which confined to the process of the diffusion. So both of the processes are going on, inside and outside, interior and exterior, through the diffusion process, so that this is the complete, this is the justify to the another line and generate differences in ion concentration between interior and exterior of the cell. सेल के इंटीरियर, आंतरिक और बाह्य जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है, उसके डिफरेंस को भी ये क्या करता है, जनरेट करता है। आपने पहले डिफ्यूजन प्रोसेस में पढ़ा है। डिफ्यूजन मैंने आपको पहले भी बताया, डिफ्यूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द पर्टिकुलरली हियर टू द सो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज स्टडी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The diffusion
मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ जो मैंने बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने डिफ्यूजन को चर्चा किया था। आज ये क्लासेस चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस ही सबसे मेन एसेंशियल प्रोसेस है जो कैपेबिलिटी को कंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो सेलेक्टिव नेचर हो जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान ही ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। जैसे आयंस का जनरेशन, आयंस का डिफरेंस का जो जनरेशन है वो तभी संभव है जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस वहां शो करता हो। तो हम आपको इन द ब्रीफ कंडीशन में बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आयन कंसंट्रेशन, आयन डिफरेंसेस का जनरेशन करती है, तो कैसे करेगी। अब आप देखें क्या है डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, a movement of the ions, atoms, solvent from a region of higher concentration to the region of the lower concentration। मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का या किसी भी सॉल्वेंट का, कहां से, किस रीजन से, उस रीजन से जहां पे उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, उसकी अधिकता, उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, और वो लोअर उस रीजन में जाएगा जहां पे उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता और उसका अमाउंट कम होता है। ये क्या है, ये आयंस और मॉलिक्यूल्स या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की टेंडेंसी होती है कि वो मूव करेगी विद इन इनसाइड द प्रोसेस ऑफ द diffusion which are allowed and ions or molecules tend to have those regions that is the less amount from to the higher amount। हायर से हमेशा लोअर की तरफ भागेंगी, जाएंगी। जैसे एग्जांपल हम बताएं कि किसी भी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है या फिर कभी आप लीव्स देखें तो लीव्स में जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगी, अगर हम लीव्स की बात करें, ऐसे एक प्रकार लीव्स हम बना लेते हैं, तो लीव्स में आप जानते हैं कि जो CO2 और O2, जो प्लांट CO2 और O2 मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया करते हैं वो डिफ्यूजन के आधार पे करते हैं। तो आप देखें अगर हम बाहर O2 को निकाल रहे हैं और CO2 को यहाँ पे ये प्लांट ले रही है, तो किस प्रकार से आप समझे। जस्ट try to understand about to the mechanism of the respiration in the plant, in the particularly leaves, which follow to the diffusion process, in which when the concentration of the oxygen in the leaves is higher in comparison to the external environment, so that the oxygen will goes now in outer side, and whereas in the transportation of CO2, that there the concentration is higher in the environments which in comparison to the in the leaves, so that the CO2 molecule will goes inside of the tissues of the cell। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आपने देखा कि जो अगर हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी देखेंगे प्लांट में तो वो भी उसी प्रकार से होता है। मैंने पहले भी मैं फिजियोलॉजी के दौरान बताया था, ऑक्सीजन को टेकअप करना या गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस एक्सचेंज की जो प्रक्रिया होती है वहां पर भी डिफ्यूजन होता है। तो ऑल अबाउट थिंग्स, जो भी सेल होगा, सेल में प्रोसेस तभी आगे बढ़ पाएगा जबकि कोई आयन मॉलिक्यूल्स या फिर कोई सबस्टेंस या न्यूट्रिएंट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल वो अंदर और बाहर की तरफ प्रवास करेगा, और तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है वो लेबोरेटरी कंडीशन में आप देखें पूरे लैब में फैल जाता है, क्योंकि वहां पे लैब का जो कंडीशन है, लैब में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा नहीं होती या फिर बिल्कुल कम होती है, और जहां से वो निकलती है जिस प्लेस से वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए वो वहां पे से बाहर निकल जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक प्रयास किया आपको समझाने का कि यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और बिना डिफ्यूजन प्रोसेस के वो कोई भी जो फिजियोलॉजी आप वाइटल एक्टिविटीज या मेटाकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकती बिना कोई आयंस या मॉलिक्यूल्स या फिर वेस्ट मटेरियल को अंदर और बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ पे देखें तो ये आपने समझा कि डिफ्यूजन प्रोसेस में
जो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ चलते हैं, और इस प्रकार से तो जब न्यूट्रल मटेरियल अंदर इन जाना होता है तो न्यूट्रल मटेरियल की मात्रा ज़्यादा होती है बाहर, एक्सटीरियर टू द सेल गोज इनटू द इंटीरियर। देखिए यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर शब्द लिखा है। आयन का कंसंट्रेशन, अगर कोई आयन जो है वो न्यूट्रल मटेरियल के फॉर्म में है या फिर कोई किसी फॉर्म में है तो वो बाहर है, सेल के बाहर है, एक्सटीरियर साइड में है, तो अगर वो इंटीरियर साइड में जाना चाहता है तो उसके लिए जस्ट यू वांट टू दैट अबाउट टू द differences of the ions, and that is allow to the plasma membrane in the cross inside, so that the first of all to the process of the diffusion which takes place. So here to the there are the concept of the ion concentration. Ion concentration is always have to the differences, because the equalization of the ions molecules or the gases from to the higher concentration to the lower concentration, which are have to the differences, and along with the differences which are goes now into the lower side till when the both of the side is the equal. जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाएगा डिफरेंसेस आयंस, वो जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगी वो हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने इस यहाँ से ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको अलाउ करेगा इनसाइड अंदर जाने के लिए, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो वो क्या अडॉप्ट करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस अडॉप्ट करती है, सेलेक्टिव नेचर होती है और उसके आधार पे वो यहाँ पे करती है। अब ये हम देखेंगे कि पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैक्सिलेटेड डिफ्यूजन को यहाँ पे करती है। हमको आपको बता दें डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, एक पैसिव डिफ्यूजन होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन होता है। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें देयर आर नो कंजप्शन ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी विच आर गोज टू द अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड वेयर एज इन द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव डिफ्यूजन दे आर द कंजप्शन ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी एंड विच आर गोज टू against the concentration gradient when of the ions or the molecules or the any kinds of the substances will go now in against to the concentration gradient, where the consumption of the energy is very important, so that in both of the process there are no consumption energy which are not take place, and here the energy which are used. So further in the classification, passive diffusion is the three types: osmosis, simple diffusion and facilitated diffusion. Osmosis the pushing from to the water molecule from the region of the higher concentration to the lower concentration. If you want to that about to the in the sense of the solution, the region of the lower the region of the lower concentration of the solution is goes to the region of the higher concentration, because in the region when the solution which are formed to the solute and the solvent, then to the transportation of this solution from to the lower to higher, who's the solutions which make by the concentration of the solvent is higher than the solute. तो वो जो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जहां से वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, उस प्रकार के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो हायर होती है और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से जो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, लोअर रीजन में जा रहा है, वहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की ज़्यादा मात्रा होती है। इसी प्रकार से मैंने क्या कहा, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से बिलोंग करता है, और एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वो सॉल्वेंट का वाटर होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल विच आर गोज फ्रॉम टू द हायर टू द लोअर, बट इन द सेंस ऑफ इन condition of to the solution, that is goes to the lower to the higher, because in this solution the higher amount of the solvent is present. So that this is the process of the osmosis, and we'll go now to the second reason of the simple diffusion. And simple diffusion is the process in which the process of the diffusion is the takes place from to the only for the gases, and the gases have to the tendency for going inside of the plasma membrane, and in between to the carbohydrates, lipids and the proteins, that is the space which are made to the path for going on.
And the third one is the facilitated diffusion, is the different type of the diffusion, special type of the diffusion along with the permeases. What is the permease? Permease is the type of the protein which carried about to the particular type of the ions, molecules and the solvents which go now inside and that to the complete of the diffusion process. So आपने देखा कि तीन प्रकार के अलग अलग डिफ्यूजन प्रोसेस जो होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन में हुए, और एक्टिव डिफ्यूजन को मैंने बताया कि वो हमेशा एनर्जी के कंजप्शन, जो हम मेटाबॉलिक एनर्जी, जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा खर्च होती है, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाके काम करते हैं। और जब पैसिव में क्या होता है, हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझिए कि अगर हम किसी भी रिवर में स्ट्रीम के साथ में जाए तो हम बहते हुए आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर हम उसी स्ट्रीम को, उसी धारा को के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी होती है, किसी सेल में जाने की बात होती है तो वहां पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था, व्हाट डू मीन बाय द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज द अप एंड डाउन सिचुएशन व्हेन द टाइम ऑफ द आयंस आर molecules goes on to the lower or the higher to the lower। ये एक सिचुएशन है, एक स्टेट है जहां से जो आयंस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होती है, जो वेस्ट मटेरियल होती है, वो लोअर से हायर या हायर से लोअर की तरफ बढ़ती हैं। तो इस मैकेनिज्म में इस पूरे लाइन का जो मतलब है मैंने आपको डिस्क्राइब किया, मेंशन किया। अब हम आगे चलते हैं। तो जनरली आप ये सारी प्रक्रियाओं को जान गए। तो बेसिकली टर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सेल मेम्ब्रेन पॉइंट किया सी नाइगेली एंड सी क्रैमर ने 1885 में, और उसी प्रकार से प्लाज्मा लेमा को दिया वो जी.के. प्लव ने इन 1931। ये तो जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था जो कि हमने आपको बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि हमें आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम चलते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर द कंपोजिशन विच आर अलाउड टू द solubility, selectivity एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहां पे देखें केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है वो तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलके बना है। अब हम आपको बता दें, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, प्रत्येक जो रीजन्स हैं, प्रत्येक जो सेल है, हर जो सेल है पर्टिकुलर जो उसका जो नेम है, जैसे आप लीवर समझे, किडनी समझे, ब्रेन समझे, स्टमक समझे, हर प्रकार के जो सेलुलर बॉडीज हैं, सेलुलर एंटिटीज हैं, उसका निर्माण तीन बेसिक चीजों से मिलकर बना है। दे आर द थ्री। फर्स्ट इज द लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तीन बेसिक चीज है। तो उसी प्रकार से वी आर जस्ट टेक टू द एग्जांपल ऑफ द मैमेलियन आरबीसी। जो आरबीसी का निर्माण हुआ है वो तीन प्रकार के, तो आरबीसी भी एक प्रकार की सेल है और उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तीन प्रकार की चीजों से मिलकर बना है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विच आर हैव टू द डिफरेंट रेशियो। द सब्सटेंसेस are the things which are mixed to the plasma membrane, which are about to the different in ratio, so that to the lipid is the 40%, protein is the 52%, and the carbohydrate is 8% as well. So here are the three different reasons, substances in the different ratios. अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द लिपिड। व्हाट इज द लिपिड? अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो निर्माण है वो तीन चीजों से मिलके बना है। तो लिपिड का जो लिपिड है वहां पे उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमें अभी आप डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो वहां पे जो लिपिड का सिचुएशन होता है, लोकेशन होता है, उनके बीच बीच में प्रोटीन होती है, और जो ये कार्बोहाइड्रेट की बात होती है वो हमेशा लिपिड और प्रोटीन से बिलोंग करती है ऊपर की तरफ। तो हम पहले समझ लेते हैं कि लिपिड कितने प्रकार होता है जो कि ज्वाइन करता है बनाने में किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो देखते हैं, लिपिड 40% एंड फास्फोलिपिड। फास्फोरस से अगर लिपिड जुड़ा है तो उसको फास्फोलिपिड बोलते हैं, ग्लूकोज से जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड
the lipid, and cholesterol is a very important. This is the complex type of conjugated type of the lipid. There are no any kinds of the bonds which are seen into the formation of the cholesterol. Actually, cholesterol is called to the esterol. Esterol is a different type, but in which to the cholesterol is a very important. That is the lipid which are take through the food material and which are go now inside the cell. That is further and further accumulated inside the body, and then which go now impact for the particular disease, and that disease is due the blood pressure. तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारा लगातार आपके जो कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी जो सेल होती हैं उसके अंदर जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अगर वहाँ पे जाके कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है तो हमारी जो हार्ट होती है, हमारे जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक धीरे धीरे उसमें ब्लॉकेज आने की संभावना बनने लगती है, और धीरे धीरे जल के ये क्या करेगी, अगर ब्लॉकेज होगी तो आप समझ लीजिए कि ये क्या करेंगी, जो ब्लड होता है वो आपके कैपिलरी पे प्रेशर लगाने लगेगा, और ब्लड कैपिलरी पे प्रेशर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ट पे प्रेशर जाएगा, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आपका ब्रेन डेड भी हो सकता है। उसको बोलते हैं एक टर्म आता है थ्रोम्बोसिस, और एक टर्म आता है ब्रेन हेमरेज। तो दो कंडीशंस है, और दो कंडीशन के हिसाब से हम जो है इसको देखते हैं। तो ये तो हमने एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने बताया। तो लिपिड देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप जब क्लासिफिकेशन में जाएंगे किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, तो वहां के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से आप वहां पे जानेंगे। चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन इज द 52% इज द मेजर पार्ट, मेजर रेशियो, बट इन द situation of the protein according to their position, the situation and the location of the protein, outer side or the inside, in between to the lipid molecules, or the interrupted to the lipid molecules, that is called to protein is according to their position is the two types, integral or intrinsic or endoprotein, and another one peripheral or intrinsic or ectoprotein। यहाँ पे आप बात समझिए क्या होता है इंटीग्रल। हम आपको छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसके हिसाब से आपको समझाते हैं। एक नॉर्मली जब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिचुएशन है वो इस प्रकार से होता है, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि बोथ ऑफ द साइड जो लिपिड से मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका इस प्रकार से सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है कि इस प्रकार से उनका अरेंजमेंट पाया जाता है, और इस अरेंजमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो आप समझे इंटीग्रल, इंट्रिंसिक और एंडोप्रोटीन, पेरिफेरल, इंट्रिंसिक एंड एक्टोप्रोटीन किसको बोलते हैं, कैसे हम समझेंगे? व्हाट अबाउट टू द कंडीशन विच आर कॉल्ड टू द इंटीग्रल, intrinsic or the endoprotein, and whole the condition is occurred to the called to the peripheral or intrinsic and extrinsic and the ectoprotein। तो तीनों कंडीशन को हम समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इंटीग्रल कब बोलेंगे। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी तब होती है जबकि यूनियन हो, और यूनियन कब बोलेंगे जबकि दो या दो से अधिक या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर हम पर्सन की बात करेंगे, लोग या थिंग्स की बात करेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट होंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कि जो लिपिड बाई लेयर होती है, लिपिड दो लेयर में होती है, और उसके बीच में देखिए प्रोटीन होता है, या फिर उसके बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, आउटर साइड में। तो आप देखें जब इंटीग्रल, जब कभी प्रोटीन इस बाइलिपिड के बीच में पाया जाए, when the position of the protein in between to the lipid bilayer, that is called to the integral, inside, intrinsic, inside, and the endoprotein within
within a bilipid layer, so that is called to the integral protein. तो आपने कंडीशन देखा इंटीग्रल क्यों कहा जाता है कि यह विदिन बीच में बिटवीन में आता है, और उसी प्रकार से अब देखते हैं हम पेरिफेरल क्यों बोलते हैं इसको, पेरिफेरल और इंट्रिंसिक और इक्टोप्रोटीन। पेरिफेरी, हमेशा जो पेरिफेरल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो एज के लिए या किसी आउटर साइड के लिए, या फिर सेंटर, बियॉन्ड द सेंट्रल, अवे फ्रॉम द सेंट्रल, अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब किसी जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है या पार्ट्स है उससे थोड़ा दूर भाग में भाग को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम तो वो उसको पेरिफेरी बोलते हैं। तो ये जो देखिए बाहर की तरफ ये लिपिड बाइलेयर है और उसके बाद प्रोटीन उसके बीच में है, लेकिन जो प्रोटीन, who's the protein, which protein situated on the either side of the outer side of the bilipid layer, that is called to the peripheral, so that extrinsic and ecto, बाहर की तरफ। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से, इसके पोजीशन के हिसाब से देखा कि जब लिपिड बाइलेयर के बीच में होगा तो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा, और जब बाहर की तरफ होगा तो वो पेरिफेरल कहलाएगा। तो आपने इसके हिसाब से सिचुएशन देखा। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इज 8% इन द ब्रांच एंड अनब्रांच। when you are in the study of to the carbohydrate is also classified to the monosaccharide, oligosaccharide and the polysaccharide. In the polysaccharide, the carbohydrate is a branch and unbranched, both of regions. Branch, when the carbohydrate which join this like, and अगर ये सिंगल रूप में कार्बोहाइड्रेट जुड़ के चला जाता है तो इसको अनब्रांच बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रांचेस के फॉर्म में निकल गई तो इसको ब्रांच बोला जाता है। तो ये लिपिड प्रोटीन से भी जुड़ जाती हैं या फिर लिपिड कार्बोहाइड्रेट से भी जुड़ती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ती हैं तो उसको लिपिड से जुड़ेंगी तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और यहाँ पे तो इस प्रकार से सिचुएशन में देखें तो ब्रांच और अनब्रांच की जो कल्पना है, परिकल्पना होती है, एस्पेक्ट होता है, सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, सिनारियो होता है, उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास किया हमने। वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द सिचुएशन एंड द कंडीशन ऑफ द लिपिड प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट इन द formation of the plasma membrane, which are have to the their position in between to the bilipid layer of the protein, that is called to the integral, and away on the either side of the protein, that is called to the peripheral protein. When the carbohydrate which are joined to the lipid in the single and the linear in the fashion, that is called to the unbranched. When that is have to the branches, the branch carbohydrate is the 8%, and the lipid is the 4 types, is the glycolipid, sphingolipid, phospholipid and the cholesterol. So that they are the chemical composition of the plasma membrane. After that, just go now to the function. What is the function of the plasma membrane? Plasma membrane का function क्या होगा? Plasma membrane कैसे अपने आप को जो है क्या कार्य करता है, किस प्रकार का कार्य करता है, उसको हम देखेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, जस्ट लेट अस सी हियर टू द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, as you mentioned in the lectures, to the plasma membrane, first of all, to affect to the identity of the cell, to form to the identity of the cell, to make the identity of the cell, it provides an identity of the cell. सबसे पहली बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही सेल का शेप या उसकी आइडेंटिटी, उसकी इंटिटी शो की जाती है, जिसके आधार पर उसको बोला जाता है जस्ट प्रोवाइड टू द आइडेंटिटी ऑफ द सेल। व्हाइल इन गो नाउ टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द शेप्स, व्हेन द राउंडेड, स्फेरिकल, पॉलीहेड्रल, फ्लैटेंड, ट्रांसवर्स, जस्ट लाइक यू एज यू कैन से। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आई कि इट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी ऑफ द सेल।
सेल की आइडेंटिटी को बनाने का काम करता है, सेल को अस्तित्व देने का काम करता है, सेल को एक आकार देने का काम करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये आइडेंटिटी को बनाता है, उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म बनाता है। दूसरा देख लेते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। अब आउटर मोस्ट बाउंड्री होने के कारण सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होने के कारण कि मतलब इसके बाद कोई सेल नहीं होगी। यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल, both type of the cell which are mentioned, that is physically separated from to the environment। इन्वायरमेंट जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, हमारी जो बॉडी का कंडीशन है, जो सेल है, वो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो सेल का साइटोप्लाज्म है, दीज आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट अलग करने का काम करता है, और काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाएगी। वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। यूकैरियोट में देखेंगे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, तो इन कंडीशन के हिसाब से वहां पर आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री होने के कारण जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होंगे, जो फोर्सेस होंगी, जो ट्रबल होंगी, जो कंडीशंस आएंगे इन्वायरमेंटल, उसको क्या करता है, फेस करता है। तो फेस करेगा तो सेल की आइडेंटिटी को, सेल के अस्तित्व को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको, कि वो उसी कंडीशन में बनी रहे जिस कंडीशन में उसको बॉडी की जरूरत होती है, बॉडी डिमांड करती है। तो आपने देखा कि क्या पहले आइडेंटिटी को बनाया, आइडेंटिटी को बनाने के बाद जितने भी ट्रबल्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहे इन्वायरमेंटल हो चाहे इंटरनल हो, उसको हमेशा क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, डिफेंस का काम करती है। और उस प्रकार से हमने देखा कि ये इसका दूसरा फंक्शन है। लेकिन इसमें सबसे 2-3 महत्वपूर्ण है, मे बी इन्वॉल्व in the cell movement, cell secretion and transmitting impulses। इसको समझ लेते हैं। They are the 3 words are used। First of all, in the cell movement, सेल के मूवमेंट में थोड़ा सा चीजों को समझें कि सेल का मूवमेंट क्या होगा। अब आप देखिए, इन द लोअर फॉर्म ऑफ द एनिमल, जस्ट लाइक टू द अमीबा विच आर गोइंग इनटू द लोकोमोशन प्रोसेस, एंड एट द टाइम ऑफ द लोकोमोशन दैट इज यूज्ड टू द स्यूडोपोडिया इन द फॉर्म ऑफ टू द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म विच आर गोज डाउन इन आउट फॉरवर्ड एंड फॉर्म टू द स्यूडोपोडिया। तो कहने का मतलब होता है कि लोअर फॉर्म्स ऑफ द एनिमल्स में, खासकर जो प्रोटोजोआ में आप देखिए कि अगर वो लोकोमोशन की प्रक्रिया कर रहा है तो अपने जो ये प्लाज्मा होता है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है अलॉन्ग विद द प्लाज्मा, वो क्या करती है, एक्सटीरियर साइड में या फिर बाहर की तरफ निकलती है और लगातार जो है मूवमेंट में जाती है। उसी प्रकार से इन जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसमें लगातार जो है ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं तो सेल सिक्रीशन की बात करते हैं। सेल के सिक्रीट में, तो जैसा मैंने बताया कि एडजेसेंट सेल है और एडजेसेंट सेल में ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, तो कैसे होगी, तो वहां से सेल जो है, मैंने बताया सिक्रीशन की प्रक्रिया सेक्रीटरी इन नेचर होती है। एंजाइम्स है, हार्मोन्स है या कोई भी और सब्सटेंस है, बॉडी से बाहर निकलना है तो फूड वैक्यूल के बाहर के रूप में निकलेगा और दूसरे सेल में चला जाएगा या उसको रिसीव करेगी, जैसे इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। तो लेकिन यहाँ पे बात है सेल सिक्रीशन की, सेल के द्वारा सिक्रीट करना, तो उसमें जो रोल होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, क्योंकि वो क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब सारी जो प्रक्रियाएं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होंगी, तो उसको क्या कर देंगी, सिक्रीट कर देंगी आउटर साइड में या फिर एडजेसेंट सेल में, उसको क्या करती हैं, वो रिसीव कर लेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिटिंग इंपल्सेस। अब आपको बताना चाहेंगे, यू आर जस्ट स्टडीड इन टू द 12th classes up to the physiology of the animals, particularly in human beings, because the transmitting of the impulses is the very complex procedure for the animals or the human beings. Neurons is a cell which make to the nervous system, that is the complex nervous system of the human beings, and millions of the neurons which are constitute together and form to the nervous system, which have to the as a unit is a neuron, and which to the receive
to the impulses from to the outer side or the inside, मतलब एक्सटेरियो रिसेप्टर की मदद से, सेंसरी सेल की मदद से जो ये न्यूरॉन्स होती हैं वो इम्पल्सेस को करती हैं। जैसे इन्वायरमेंट में अगर बदलाव हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि एडॉप्टेशन, द एडॉप्टेशन मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, सो दैट आवर बॉडी आर द सेल्स विच आर steady in state, homeostat, which tolerate their temperature in accordance to the environment. But यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? when you time just know that, कब हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया हो रही है? तो जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनता है, अलग अलग जो सीजन्स आते हैं उस सीजन्स के हिसाब से हमको समझना पड़ता है। तो जैसे अगर हमारे ये जो सेंसरी सेल होती हैं, सेंसरी सेल्स हैं और सेंसरी सेल्स हमारे न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं, प्रत्येक न्यूरॉन मिलके जो है नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन किया है, तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल हो चाहे बाहर इन्वायरमेंट हो या फिर विद इन हमारे बॉडी में, तो वहां पे क्या होती है, एक्सटेरियर रिसेप्टर बाहर के लिए इंटीरियर रिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्टर पाए जाते हैं। वहां से क्या होती है, इंटरनल मैकेनिज्म के लिए इंटीरियर रिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्टर से, और बाहर एनवायरनमेंट से मैसेज को रिसीव करने के लिए क्या होती है, एक्सटेरियो रिसेप्टर होती है, 5 होती है, आपको पता है, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। तो यहां से हमें पता चलता है सेंसरी सेल के माध्यम से, सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से, और वो हमारे ब्रेन से होता हुआ हम उसको रीड करते हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करते हैं, भेजते हैं, और उसके हिसाब से तो हम आपको बताना चाहेंगे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, और इम्पल्स का ट्रांसमिशन आपके केमिकल मैसेंजर्स होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे आपका एसिटिलकोलिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सब क्या करती है, इम्पल्सेस को जब सेंसरी सेल से अगर कोई एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन विच रिसीव बाय द न्यूरॉन सेल एंड दैट इज goes further and further is the each of the neurons to the brain, that to the called to the impulse, and impulse is the electrical form, goes one by one after the receiving of the neurotransmitter substances, each of the neurotransmitter substances which present to the pre and post synaptic membrane. Pre and post synaptic एस्पेक्ट क्या है, जब कोई न्यूरॉन एक स्थान पे जुड़ती है तो जो पहली वाली न्यूरॉन का पार्ट होगा वो एंड पार्ट होता है, और जो दूसरी जो उसका इनिशियल पार्ट होता है, तो वहां से वो जब दोनों जुड़ती हैं तो वहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट फॉर्मेशन में तो मैंने प्री सिनेप्टिक नॉब की बात की, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होती है, वेसिकल्स के फॉर्म में होती हैं, जब ट्रांसमिशन इम्पल्स के फॉर्म में चलता है तो उसको रिसीव करके और डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज के आगे की तरफ क्या कहते हैं, दूसरे न्यूरॉन से पहुंचाती हैं। तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है, और जहां पे हमारी डेस्टिनेशन है, टारगेट ग्लैंड्स है, टिश्यूज होती है, जहां से फंक्शन होना है वो प्रोसेस को करवा देती हैं। विच आर द प्रोसेस इज डन बाय आफ्टर टू द रेगुलेशन ऑफ द ब्रेन विच रिसीव टू द स्टिमुलेशन फ्रॉम द स्टिमुलाई, सो दैट दिस प्रोसेस इज गोज नाउ फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, it is called to the transmitter impulses. Third देखते हैं, it is selectively permeable. That is very important. Selectively permeable. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया कि सेलेक्टिव परमेबल है, वो जितने भी आयंस जो टिश्यू हैं, मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्रोटेक्टिव कवर है, मेम्ब्रेन्स है, और वो क्या करता है, वो प्रवृत्ति रखता है, कैसा प्रवृत्ति की, जब आयंस मॉलिक्यूल सॉल्वेंट या न्यूट्रिएंट या वेस्ट मटेरियल को एंट्री और अलाउ करेगा तो बिना जो है वो उसके सिलेक्शन के नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है, सेलेक्टिविटी भी कई प्रकार की होते हैं, इम्परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है, परमेबल होता है, डायलाइजिंग होती है, 4 प्रकार की परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे सेलेक्टिव परमेबल है, जैसा मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस में आपको पहले ही बताया, एज यू मेंशन दैट इनटू द डिफ्यूजन प्रोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिफ्यूजन टू द एक्टिव पैसिव ऑस्मोसिस एंड द फैसिलिटेटेड and the simple diffusion, which are allowed to the different kinds of the molecules into different manners and different procedures, so that in here to the it is a selectively permeable.
the glucose is the largest molecule which only across inside the cell through the permease. That is the process of the fractionated diffusion. For the gaseous exchange, that's only adapted to the simple diffusion. For the solutions and the solvent is carried about to the osmosis process, and so that in the different types of the ions molecules and the solvent are the nutrient and the waste product which diffusion process is adapted. तो यहाँ पे देखा अलग अलग प्रकार के डिफ्यूजन प्रोसेस को एडाप्ट करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है कि मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। अगला जो और इसका और भी कुछ जो इसके ऑप्शंस होते हैं फंक्शन के रूप में, वो होता है कि ये मैंने जैसा पहले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रिसेप्टर्स के माध्यम से, रिसेप्टर ऑर्गन्स होती है, रिसेप्टर सेल होती है, उसके माध्यम से प्रत्येक जो सेंसेशन होता है उसको रिसीव करके हर प्रत्येक सेल में पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अस्तित्व को बनाती है, सेल को बनाती है, उसके बाउंड्री को फॉर्म करती है, और डिफरेंट प्रकार के जो न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अलाउ करती है डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से। उसके केमिकल कंपोजिशन को आपने देखा, अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपोजिशन होते हैं जिसमें आपने देखा कि अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, वो अलग अलग पोजीशंस पे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। दैट इज द सिचुएटेड इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पोजीशंस, सो दैट इज गिवन टू द नेम एज द इंटीग्रल, intrinsic and the ecto-endo, peripheral, extrinsic are the endo, and so that is the unbranched and the branched carbohydrate which are joined to the lipid and the protein molecules, so that is the name as to the phospholipid, glycolipid, sphingolipid, and the particular type of the lipids which are found into the inside the body is the cholesterol. So now today's topic is closed, so that in the next topic is the related part, and to the one of the new chapter is the mitochondria. So that, thank you.